intermediate value theorem, and this says that every continuous function on a connected topological space assumes every value between its any two values. ये इसका कंटेंट है, ये ऐसा कंटेंट है, राइट? It assumes every value between its every two values. What is the meaning of this thing? इसका मतलब ये हो जाएगा we need to prove that if where x1 and x2 belong to x, then there is a sum x such that fx equal to t. कहता है it assumes every value between its any two values. ये मान लीजिए दो वैल्यूज है f की दो वैल्यूज हैं at some point, एक x1 x2, ये दो वैल्यूज हो गई, तो इनके बीच में कोई भी वैल्यू आएगी t, तो f assumes that means this t will be equal to image of some element of capital X under f. This is what it says, right? और प्रूफ इसलिए सरल है. Now since x is connected, f is continuous, therefore fx is also connected because continuous means the connected space is connected, right? And also moreover हम लोगों ने देखा था कि a subset of V is connected if only if it is an interval. Also fx is an interval, और इंटरवल की प्रॉपर्टी क्या थी कि जब भी दो एलिमेंट उसको बिलोंग करेंगे तो उनके बीच के सारे एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे. तो यहाँ पर सिंस fx1 and fx2 are obviously two elements, और ये एलिमेंट इसके पे आ रहा है 4 because this is an interval, therefore this t should also belong to fx. But this means, this means that t should be equal to image of some, but then t should be equal to some x in this thing. So we have shown that कि अगर f की दो वैल्यूज के बीच में कोई वैल्यू जाती है तो हमको एक x मिल जाएगा such that fx equal to t. So this completes the proof of this theorem. Now we prove another very useful result. It says that
if A is a connected subset of a topological space X, and if A और A क्लोजर के बीच में कोई और सबसेट सैंडविच हो जाएगा, then B is also connected. ठीक है, then B is also connected. So हमको दिखाना है कि अगर A कनेक्टेड है तो A और A क्लोजर के बीच में कोई और सबसेट आ जाएगा तो वो भी कनेक्टेड होगा, राइट? एंड प्रूफ के लिए हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे? हम ये अपनाएंगे कि हम लोगों ने देखा था कि कनेक्टेड को पहचानने के जो 3 और तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये भी था दैट a set is connected if and only if every continuous function from that set to a discrete space with at least 2 points is going to be constant. तो क्या करेंगे? I will take a continuous map from a discrete space and I'll show that that's going to be constant. So this is what we do. So enough show that if F from B to Y, where Y is any discrete space, is continuous, then F is constant. So let F from B to Y be some continuous map. Remember हमको क्या दिखाना है कि ये हमारा जो है ये कांस्टेंट है. Now you see that since the restriction of F to A, क्योंकि B का सबसेट A, तो ये कहाँ से कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका A से लेकर के Y तक. और आपको मालूम है कि restriction of a continuous map is continuous since this is continuous and A is given to be connected. Therefore, property क्या थी कि every continuous map from a connected to a discrete space is constant. Therefore, F by A is constant. That is पूरा का पूरा A जो है एक ही जगह पे जा रहा है. That means F of the whole of A is equal to Y for some Y belonging to Y. A constant का मतलब है कि पूरा A जो है एक ही जगह जा रहा है. Now remember आपको याद होगा कि if I take आपको याद होगा, हम आपको याद दिला दें, बहुत पहले प्रूव किया था कि F from X to Y is continuous if and only if for every X F of A closure is contained in the closure of, is contained in the
क्लोजर ऑफ दिस थिंग, ये वाला क्लोजर एक्स के अंदर है और एफ का क्लोजर वाई के अंदर, ये हम लोगों ने किया था, ये हमने किया था। तो बहुत समय के बाद इसका फिर से एक बार इस्तेमाल करने का समय आ गया है, राइट। सो सिंस f is continuous और a इसका सबसेट है, इसलिए f of a closure is contained in f of a closure। अब यहां पर जो हम a का क्लोजर ले रहे हैं, a का, तो a का क्लोजर b के अंदर ले रहे हैं, राइट। तो हम थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, बजाय a क्लोजर लिखने के आई विल मेक इट क्लियर दिस इज क्लोजर ऑफ a बट इन b। ये वाला क्लोजर कहां पर है? ये तो y के अंदर है, क्योंकि ये तो y में चला गया, y यहाँ तो एक ही चीज है, इसके अलावा और कोई सबसेट है नहीं इसका, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये तो क्लोज, बाय द वे चूंकि y पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो एवरी सबसेट इज क्लोज, देयरफॉर इट इज इक्वल टू दिस क्लोजर। तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा किसके? f ऑफ a के। ये क्या हो जाएगा? आई गेट यू, बिकॉज दिस इज क्लोजर इन y पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, every subset is closed, so it is going to be its closure, so this is equal to this thing। now you also remember कि अगर x कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, y कोई इसका सबसेट है और a इसका सबसेट है, तो हम लोगों ने एक और रिजल्ट प्रूव किया था कि अगर y पे हम सब स्पेस टोपोलॉजी रख दें, then the closure of a with respect to y is equal to closure of a with respect to बड़े वाले में, और इसका ले लेते हैं इंटरसेक्शन विद y। ये किया था हमने, ये किया था, इसकी भी जरूरत है हमको, इसकी भी जरूरत है, राइट। तो अब ये जो है, दिस इज क्लोजर ऑफ b, सो आई कैन राइट इट एज देयरफॉर दिस, दैट इज, ये यहां लिख देते हैं। नाउ closure of A with respect to B is actually equal to closure of A, B तो आपका X का सबसेट है, so this is actually A का क्लोजर और उसका इंटरसेक्शन विद B, ये मिलेगा आपको। यहां से देखिए, y की जगह पे b ले लिया, ये आपका ये है ना x टोपोलॉजिकल स्पेस, तो b जो है इसका सबसेट है, तो y की जगह पे b है, so this is equal to this thing। now you see that this in turn I can write as यहाँ पर इसका इस्तेमाल कीजिए, b is contained in a, therefore b intersection a closure is going to be equal to b, this is equal to p, why? Because B is contained in A closure, इसकी वजह से हो जाएगा। Therefore, you can see from here f of closure of A। अब जब closure of A with respect to B के बराबर निकल के आ गया है, तो इसकी जगह हम B भी लिख सकते हैं, So I can write f of B is contained in f of a, लेकिन f of a, अब हम यहाँ थोड़ा सा गलत लिख गए थे, f of a को लिखना चाहिए था, हमको ऐसे लिखना चाहिए था, I'm sorry, I should write here singleton set, ठीक है। so f of a consists of only one element, क्योंकि f constant था, and this is equal to, so therefore f of b is also going to be equal to this thing, that is f from b to y, तो b की पूरी इमेज एक ही एलिमेंट है, therefore this is
a constant map. So B is connected. ठीक है, corollary, if A is connected, then its closure is also connected. क्योंकि हम B की जगह पे A बार ले लेंगे, वही तो इन दोनों के बीच में आ रहा है. So you can see that if A is connected, then its closure is also connected, right? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यस सर, हो गया. ओके ओके, सो याद रखिएगा, हम इसका इस्तेमाल करेंगे, दोनों चीज़ों का, इसका भी इस्तेमाल करेंगे, और इन पर्टिकुलर इसका कि किसी भी कनेक्टेड सेट का क्लोजर भी कनेक्टेड होता है, विच इज अ कॉलरी ऑफ दिस थिंग. नाउ वी प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट कि if AB are connected subsets of a topological space X, और अगर दोनों डिसजॉइंट नहीं है, then A union B is also connected. Right? Once again, enough to show that if F is any continuous map, if F where Y is discrete is continuous, then F is constant, right? हमको अगर दिखाना है A में इस कनेक्टेड दिखा देंगे, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम ए यू बी टू ए डिस्क्रीट स्पेस इज कांस्टेंट. तो हमारे पास एक पिक्चर बना देते हैं तो देखने में आसान हो जाएगा. ये हमारा मान लीजिए, ये हमारा मान लीजिए ए है, और ये हमारा जो है, ये हमारा मान लीजिए बी है. डिसजॉइंट नहीं है, इनके बीच में कोई पॉइंट कॉमन है. एक पॉइंट तो कॉमन है, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर कॉमन है. मान लीजिए इसका नाम है x, ये x है. तो अब हम क्या करते हैं कि यहां से यहां तक हमने एक फंक्शन ले लिया है, एक फंक्शन ले लिया है. मान लीजिए ये हमारा y है, ये हमारा y है. तो हमारा फंक्शन यहां से लेकर के यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक हमारा f है, जिसको हम दिखाना है कि दिस इज कांस्टेंट, कंटिन्यूअस दिया हुआ है. तो अब देखिए कि यू कैन सी कि इफ आई रिस्ट्रिक्ट f टू ओनली a, then because a is connected, restriction of f to a will be constant, and because b is also connected, restriction of f to b is also constant. So okay, so let f be such a function, that means f is continuous and y is discrete. Since a, b are connected, therefore f of a सब एक जगह जा रहा है, सब एक जगह जा रहा है.
तो ये वाला पॉइंट भी वहीं जाएगा जहां ये वाला पॉइंट भी वहीं जाएगा जहां ये वाला पॉइंट जाएगा, जहां ये वाला पॉइंट जाएगा, जहां ये वाला पॉइंट जाएगा, राइट? सो दैट मीन्स f of a is equal to f of x. जो इसकी इमेज होगी वही सबकी इमेज होगी, एंड बिकॉज b इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो जहां पर ये एलिमेंट जाएगा, जहां पर हमारे पास तो और रंग का ऑप्शन नहीं है, तो जहां पर ये जाएगा, जहां पर ये जाएगा वहीं जाएगा जहां पर, चूंकि x कॉमन है, जहां पर ये जाएगा. सो दैट मीन्स दिस ऑल्सो इक्वल टू fb, where x is an element of a intersection b, because it is given that they are disjoint. तो यानी कि f को a को वहीं भेजेगा जहां पर x को भेज रहा है, और b को भी वहीं भेजेगा जहां पे x भेज रहा है. Therefore, what do you expect? ये क्या होगा? बट इसके सारे एलिमेंट जा रहे हैं जहां पे x जा रहा है, इसके एलिमेंट जहां जा रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू only this thing. That is, f is constant, right? F is constant, right? So A union B is connected. अब ये आपने ट्रिक देख ली. अब मान लीजिए हमारे पास बजाय 2 के 3 होते, अगर तीन होते मान लीजिए हमारे पास, अगर 3 होते हमारे पास, एक यहां भी होता मान लीजिए, एक ये भी होता मान लीजिए हमारे पास, राइट? सच दैट ओके. सो यू कैन सी, हम आपको एक्सरसाइज देते हैं. एक्सरसाइज इसी का एक्सटेंशन है. इफ A, B, C are connected and A intersection B is not empty and B intersection C is also not empty, then A union B union C is also connected. इसका प्रूफ लिखेंगे नहीं, बट आई एक्सप्लेन टू यू थ्रू दिस पिक्चर. अब हमारे पास क्या है? अब हमको दिखाना है कि एवरी कंटिन्यूअस मैप फ्रॉम A union B union C to any discrete space is constant. तो मान लीजिए आपने ये फंक्शन ले लिया फ्रॉम A union B union C F to this thing. इसमें कॉमन पॉइंट है, और चूंकि A, B और C भी डिसजॉइंट है, इसमें कॉमन पॉइंट, इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए हम Z बोल देते हैं, ये Z बोल देते हैं. तो क्या हो जाएगा कि F A को वहीं ले जाएगा जहां पर कि A और B के कॉमन पॉइंट को ले जा रहा है, X पे ले जाएगा, और C को कहां ले जाएगा? C और B दोनों को वहीं ले जाएगा जो इनका कॉमन पॉइंट है. इनका कॉमन पॉइंट Z है. सो यू कैन सी दैट हम लिख नहीं रहे, लेकिन इसी को आप कॉपी कीजिए, आपको दिखाई पड़ जाएगा कि f of A is equal to, I'm sorry, f of x which is equal to f of B, तो आप देख ही चुके थे, और f of B is equal to f of Z equal to f of C. ये हो जाएगा, यहां से निकल आएगा. इसका मतलब क्या हो जाएगा? Therefore fx is equal to fz. Therefore this implies that fx is equal to fz, and therefore this will imply कि A union B union C इनकी इमेज क्या हो जाएगी? जिसको पसंद है वो इसको fx लिख ले, और जिसको पसंद है वो इसको लिख ले fz. It doesn't matter, they're same. But what it says is कि A union B union C की इमेज केवल एक ही पॉइंट पे लेगा,
चाहे उसको आप एफ एक्स बोल दिए, चाहे उसको आप बोल दिए एफ जेड, एक ही पॉइंट में, दैट मीन्स कांस्टेंट। सो देयरफॉर एफ इज कांस्टेंट। ठीक है, तो जो 2 वाला आर्गुमेंट है यू कैन एक्सटेंड टू 3, और अब आप महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, और ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। सो नाउ द एक्सटेंड एक्सरसाइज इज exercise. Let A1 या A2, A3 वगैरह 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 be connected subsets of X with the property that AI intersection AI plus 1 is not empty for every I from 1 to up to this thing. Then union of AI is connected. ठीक है, दिस इज कनेक्टेड, राइट। वो यार, तो बेसिक आर्गुमेंट यही है, बेसिक आर्गुमेंट यही है, उसी का ऑब्वियस एक्सटेंशन है, चाहे 3 के लिए, चाहे 4 के लिए, चाहे एनी नंबर, राइट। यू कैन राइट लाइक दिस थिंग, राइट। सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लिए। Yes, sir. Okay. Now we move to this thing. अब जैसे मान लीजिए कि let X be a topological space. Be a topological space. Call XY to be connected. नोटेशन में लिखिए if there exists a connected subset of X containing both X and Y. Clearly, or clearly X this Y, since this is connected. Number 2, अगर X then Y is this thing. Third, अगर X Y से connected है, Y Z से connected है, then X is connected to Z. All these things are very trivial to see. ये आपका X है, ठीक है। ये अगर X और Y है, तो अगर X Y कनेक्टेड है, X रिलेटेड टू Y है, तो इसका कनेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है इनको कंटेन करने वाला। तो जो X और Y कंटेन करना है वो Y और X को भी कर रहा है, दैट मीन्स ये चीज हो जाएगी। और अगर मान लीजिए एक एलिमेंट Z है और Y इज कनेक्टेड विद Z, तो इसका वाला आपको मिल जाएगा। अब चूंकि इसके और इसके इंटरसेक्शन में ये आ जा रहा है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, एक और दोनों के दोनों डिस्जॉइंट है, इसका इनका यूनियन भी कनेक्ट हो जाएगा, यानी दिस सेट यूनियन दिस सेट यूनियन भी कनेक्टेड।
which contains x and z. Therefore, this thing is also going to happen, right? So you can see that this relation, right? So we thus see that this is an equivalence relation on x. ठीक? The equivalence classes of x under this equivalence relation are called components, या बेहतर बोला है और connected components. Connected components of x. In particular, the equivalence class of x, that means all y such that x related to y is called the connected component of x and is often, सब किताब नहीं लिखती हैं ऐसे, but is often denoted as cx. तो होगा क्या आपका कि जैसे मान लीजिए जो इक्विवेलेंस रिलेशन का जो आपको शुरू से पढ़ रखा है आपने 10 12 जब भी शुरू करते हैं आप, तो कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, इसकी मान लीजिए कंपोनेंट मिल गया, इसका मान लीजिए ये मिल गया, तो जितने कंपोनेंट्स मिलते हैं, जितने इक्विवेलेंस क्लासेस मिलते हैं, दे डिफाइन ए पार्टीशन ऑफ दिस थिंग, राइट? सो क्लियरली the distinct components partition, ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन की जो प्रॉपर्टी है वही सब चीजें हैं और कोई ऐसी बात नहीं है, राइट? सो we have this notion of what is called as a connected component. और एक आज चीजें तो बिल्कुल ऑब्वियस है, क्लियरली x is connected if and only if it has only one component. इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ऑब्वियस अगर एक ही कंपोनेंट, इसका मतलब कि x is connected. ठीक है, और ये भी क्लियर होना चाहिए फ्रॉम डेफिनेशन, Cx is the largest connected subset of x which contains x. ये भी क्लियर हो जाएगा, ये सब इक्विवेलेंस क्लास वगैरह से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? और एक और चीज लिख देते हैं,
कि CX is always closed. ये थोड़ा सा नॉन ट्रिवियल है. वाई? बिकॉज ये इसका कारण है. क्यों ऐसा होता है? सिंस TX is contained in obviously its closure. हमने देखा था जब भी कोई सेट रिलेटेड है तो क्लोजर भी करेक्ट. दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड. और हमने ये भी कहा था कि दिस इज द लास्ट सेट ऑफ एक्स विच कंटेन्स एक्स. तो ऑलरेडी जनरली तो CX बार जो है CX से बड़ा होगा क्लोजर से जनरली. लेकिन कंपोनेंट जो है ये पहले से ही X को कंटेन करने वाला लार्जेस्ट कनेक्टेड सबसेट मिल चुका है. तो ये अगर ये से स्ट्रिक्टली लार्जर नहीं हो सकता है, राइट. सो देयरफॉर दिस CX will have to be equal to CX बार. फिर से रिपीट कर दें. CX कनेक्टेड होता है फ्रॉम डेफिनेशन, कंपोनेंट कनेक्टेड होता है. और अगर कोई सेट कनेक्टेड सा क्लोजर भी कनेक्टेड होता है, ये भी क्लियर हो गया. और CX भी ऐसा कंटेन कर रहा है, ये भी कंटेन कर रहा है, कोई और बड़ा है. लेकिन CX जो है वो X को कंटेन करने वाला लार्जेस्ट कनेक्टेड सबसेट है. और चूंकि ये इससे भी बड़ा है तो लार्जेस्ट तो दो हो नहीं सकते. So therefore, this will have to be equal to this thing. So CX is going to be equal to CX closure, and if a set is equal to its closure, then it is going to be closed. तो ये तीन चीजें तो बिल्कुल सरल है. One can notice about components, right? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. ठीक है. ओके. अब हम लोग ये प्रूव करते हैं. हम लोग उसको प्रूव करने की तरफ बढ़ रहे हैं कि ए प्रोडक्ट ऑफ कनेक्टेड स्पेसेस इज कनेक्टेड, राइट. लेकिन उसके पहले एक बीच का रिजल्ट ये है कि इफ XY are connected topological spaces, then their product is also connected. Okay. तो हम दिखा देंगे कि enough show that any 2 points of X cross Y are contained in a connected subset X cross Y. भाई देखिए, अगर आपको दिखाना है कि कोई भी सेट, कोई भी टॉपोलॉजिकल स्पेस X cross Y नहीं, कोई भी, मान लीजिए आपको दिखाना है कि कोई टॉपोलॉजिकल स्पेस कनेक्टेड है, तो ये दिखाना पर्याप्त होगा कि उसके कोई भी दो एलिमेंट्स एक कॉमन कनेक्टेड सेट के अंदर कंटेन्ड है. उसे क्या हो जाएगा कि हर एलिमेंट का कंपोनेंट, कनेक्टेड कंपोनेंट एक ही हो जाएगा, क्योंकि एनी टू एलिमेंट्स आर कंटेन्ड इन ए कॉमन कनेक्टेड सेट, राइट. तो कंपोनेंट क्या होता है? लार्जेस्ट कनेक्टेड सबसेट कंटेनिंग दैट पॉइंट. तो जब सारे पॉइंट्स एक ही सबसेट में कंटेन हो जाएंगे तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा सेट क्या हो जाएगा? कंपोनेंट क्या हो जाएगा? पूरा X हो जाएगा. दैट मीन्स X इज गोइंग टू बी कनेक्टेड. तो आपको बस ये चीज नोट करने की है, ये वाले पार्ट,
कि क्यों ये पर्याप्त दिखाना, ये दिखाना पर्याप्त होगा that any two points of these things are contained in a subset of this thing, and this will take care of everything, because then x plus y will have only one component, and if a topological space is only one component is going to be connected, as we remarked earlier. हम दो पॉइंट्स लेते हैं इसको, तो let x1 कॉमा y1 और दूसरा ले लीजिए, मान लीजिए x2 कॉमा y2 be two elements of this thing, right? So note that x1 cross y is homeomorphic to y. By the way, हमको बताना चाहिए था, उस वक्त हमने शायद इसको बताया नहीं था, राइट? वो ये है कि if x and y are homeomorphic, then we write like this thing, x, ठीक है? तो this is homomorphic to this thing, homomorphic to this thing, and क्यों है? मैं देखिए, आप क्या कीजिएगा कि ये तो यही बात खत्म हो गई। आप क्या कीजिएगा कि ये आपने x1 क्रॉस y से y में you take the projection to the second coordinate, ये भी एक स्पेस है, ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट, राइट? प्रोजेक्शन मैप कंटिन्यूअस होता है, ऑन टू होता है, ओपन होता है। ये कर क्या रहा है? ये क्या कर रहा है? किसी भी एलिमेंट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो हमेशा कांस्टेंट होगा x1, सेकंड कोऑर्डिनेट वेरी करेगा। ये क्या कर रहा है? इसको कहाँ भेज रहा है? इसको भेज रहा है y पर। तो दिस मैप, प्रोजेक्शन मैप इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ओपन भी होता है, इस ओपन भी होता है, ऑन टू भी होता है, लेकिन ये वाला जो 1 1 भी है, ऑब्वियसली अगर x1, y1 और x1, y2 बराबर क्या हो जाएगा? y1 बराबर y2 हो जाएगा। तो you can see that P2 is a homomorphism. That is why this is homomorphic to y. And similarly, and x cross y2 is likewise homomorphic to x. Therefore लिखना था, since लिख गए। Therefore, because this is homomorphic to y और y दिया हुआ है कनेक्टेड, और कनेक्टेड स्पेस की कंटीन्यूअस इमेज कनेक्टेड होती है, therefore x1 cross y is connected, and similarly because x is connected, x cross y2, these are connected. Also, अगर आप x1 क्रॉस y लें और x क्रॉस y2 लें, तो आप देखिएगा कि इनके अंदर एक कॉमन एलिमेंट है x1, y2। भाई x1, y2 यहां भी बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो ये चाहिए, सेकंड कुछ भी हो सकता है यहां पर, और यहां पर क्या बंधन है? केवल सेकंड कोऑर्डिनेट y2, पहला कुछ भी हो सकता है। सो दिस बिलोंग टू दिस थिंग। तो ऑल्सो x1 क्रॉस y intersection x cross y2, this is not empty. अब दोनों कंबाइन कर दीजिए, ये दोनों कनेक्टेड सबसेट्स हैं, इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, देयरफॉर इनका यूनियन भी कनेक्टेड होगा। हेंस x1
cross y union x cross y2 is connected. अगर आपको बार बार इतना बड़ा लिखने में दिक्कत होती है तो हम इसको z बोल देते हैं. This z is connected, being union of two connected sets which are disjoint. This is connected. Note, finally, that x1 comma y1 and x2 comma y2, these belong to z. क्योंकि x1 comma y1 तो यहाँ बिलोंग कर जाएगा और x2 comma y2 यहाँ तो बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट मैच नहीं करेगा, यहाँ बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पहला कोऑर्डिनेट तो कुछ भी ले सकते हैं, राइट? सो यू कैन सी दैट x1 comma y1 and x2 comma y2 belong to z. So what we have done, we have produced a connected subset z which contains these points. ये हमारा मकसद था, ये दिखाना कि if I take any 2 points, they are contained in a connected subset. Therefore, so hence x cross y is connected. That is it. Okay, so the product of two connected spaces is connected, and of course you can see that you can extend it to show that product of 3, of 4, 5, or any finite. This is slightly tricky to prove. In fact, theorem. Not only finite, any product of connected spaces is connected. Right? Any, not only finite, not only 2, 3, 4 finite, any product is connected, but the proof is different. The proof is different from this one, right? तो उसका फ्लेवर डिफरेंट होगा. बट बिफोर वी डू दैट एक और चीज क्योंकि इतनी जगह बची वो तो नहीं हो पाएगा, इसका प्रूफ लंबा होगा. तो लेट मी इन द अवेलेबल स्पेस लेट मी ऐड वन मोर थिंग. इसको प्रूव करेंगे right? पूरा तो नहीं कर पाएंगे, बट वी विल मेक ए बिगिनिंग टुडे. बट बिफोर दैट you can notice the following. हम कंपोनेंट के बारे में जो चीजें लिखते थे 1, 2, 3, 4 वही बोलना चाहिए था, लेकिन भूल गए. इसके प्रूफ के समय को याद आ गया तो हमको जरूरत पड़ेगी तो यहाँ लिख देते हैं. फोर्थ ये है, एवरी नॉन एम्प्टी connected Clopin subset A of a topological space is a connected component. इसको ऐसे इस में देखिए, एक तो मैं देखा था कि कंपोनेंट इज ऑलवेज क्लोज्ड. एक तो ये था. ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी सबसेट है, अगर वो कनेक्टेड और क्लोपन है तो उसको कंपोनेंट होना पड़ेगा, राइट? तो इसका प्रूफ ये है, रीजन कि मान लीजिए कि तो हर सेट किसी कंपोनेंट में कंटेन हो रहा है. तो लेट ए बी कंटेन इन ए कंपोनेंट सी. देखिए
रिपीट कर दें, ए दिया हुआ कनेक्टेड, ए दिया हुआ कनेक्टेड, राइट। और कंपोनेंट तो ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जगह तो नहीं है यहाँ पे, आई डोंट हैव मच स्पेस लेफ्ट हियर। जैसे मान लीजिए कि ये आपका होता, ये आपका एक्स होता, ये आपका एक्स होता, ये आपका, हम थोड़ी जगह कम लेते हैं ए। तो अगर हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, ऐसा कंपोनेंट क्या होगा, ऐसा कंपोनेंट जो होगा दैट इज द लार्जेस्ट कनेक्टेड सेट विच कंटेन दिस एलिमेंट। तो चूंकि ए भी कनेक्टेड है, तो जो भी इसका कंपोनेंट आएगा वो ए से बड़ा होगा। आई अगेन रिपीट, अगर हमने आपको एलिमेंट ले लिया, ऐसा कंपोनेंट क्या होगा, ऐसा कंपोनेंट इज द लार्जेस्ट कनेक्टेड सबसेट विच कंटेन दिस एलिमेंट। क्योंकि ए स्टिल इज कनेक्ट, ए अपने आप ही कनेक्टेड है, तो जो इसको कंटेन करने वाला जो कंपोनेंट लार्जेस्ट सबसेट मिलेगा वो ए से तो बड़ा ही होगा। तो आपको इसका जो मिलेगा इसको तो कंटेन करेगा ही। ये मान लीजिए ये आपका सी है, ये मान लीजिए आपका सी है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दिस ए इज ऑलवेज कंटेन इन ए कंपोनेंट, ए इज ऑलवेज कंटेन इन ए, राइट, ए इज ऑलवेज कंटेन इन ए कंपोनेंट। अब हम ये कहते हैं कि note that A and C intersection X minus A form a disconnection of C। याद की डिस्कनेक्शन की परिभाषा क्या थी, हम लोगों ने कहा था कि a topological space X is connected if there does not exist two non-empty disjoint open subsets A B जिनका की यूनियन X के बराबर हो। तो अगर ऐसे सबसेट्स ओपन, ऐसे दो सबसेट्स ए बी एग्जिस्ट करते हैं, उसको बोला गया था डिस्कनेक्शन ऑफ दैट टॉपोलॉजिकल स्पेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि ये डिस्कनेक्शन मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, यहाँ से देखिए, पिक्चर देखिए, ये आपका ये क्या हुआ, x माइनस ए क्या हुआ, x माइनस ए क्या हुआ, x माइनस ए जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। मान लीजिए ये हो गया, ये ये मिल गया। रिमेंबर, बड़ा वाला गोला सी है, राइट। और फिर हमने क्या किया कि इसका इंटरसेक्शन ले लिया विथ ए, तो ये इसका इंटरसेक्शन ले लिया विथ सी, ये सी था, ये हमारा सी था, यहां से लेके तक सी था। तो सी इंटरसेक्शन ये क्या मिलेगा, सी इंटरसेक्शन ये आपका मिल जाएगा, सी इंटरसेक्शन ये जो लाल वाला है, दिस इज योर एक्स माइनस ए। तो सी इंटरसेक्शन x माइनस ए क्या मिलेगा, सी तो यहां से यहां, ये वाला, ये जो हिस्सा है तुम ग्रीन कर देते हैं, ये मिलेगा, ये, राइट। तो ये ए जो है, ये जो ए है, ये तो आपका ए था, ये आपका ए था। यू कैन सी दैट ए और ये ग्रीन वाला पार्ट, ये दोनों मिलाकर के सी का यूनियन हो जाएगा, और ये डिसजॉइंट भी हो गए, और ए दिया हुआ है क्लोपेन, तो ए आपका ओपन भी हो गया, ये आपका ओपन हो गया, राइट, ए आपका ओपन हो गया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्लोज्ड हो गया, ठीक है, वो क्लोज्ड हो गया। और तो this is going to form a disconnection of this thing. You can see that A union this thing is going to be equal to C, and these are going to be two closed sets. क्योंकि A क्लोपन है तो क्लोज भी है, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट इसका जो है, इसका कॉम्प्लीमेंट जो है ओपन भी है और क्लोज भी है। क्योंकि A क्लोपन है ना, तो कॉम्प्लीमेंट इसका क्लोज भी है, और चूंकि C कंपोनेंट है, कंपोनेंट हमेशा क्लोज होता है, तो C इंटरसेक्शन दिस थिंग, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड हो गया। सो यू हैव गॉट
two non-empty disjoint closed sets, namely A and this thing, जिनका यूनियन C का है जैसा कि दिखाई पड़ रहा है. So आपको इसका डिस्कनेक्शन मिल गया जिसकी वजह से ये हो जाएगा, therefore C is disconnected, right? Showing that C is disconnected. A contradiction. This is a contradiction. क्योंकि C कंपोनेंट है तो कनेक्टेड होगा, राइट? तो so every non-empty connected Klopen subset is contained. हम क्या कह रहे थे? Every non-empty subset is a connected component. This is going to be connected component. This is going to be connected component. So अगर A आपका component नहीं है तो A will be contained in a component जो कि C से properly बड़ा होगा. उस केस में you'll get this contradiction. Therefore A itself must be a component. नहीं है तो A से strictly बड़ा आपको A component मिल जाएगा C, लेकिन जब strictly बड़ा मिल जाएगा तो दोनों non-empty हो जाएंगे. This is both are non-empty disjoint closed sets जिनका union C के बराबर है. We should show that C is not connected. That's a contradiction. So that is why every non-empty connected Klopen subset of a topical space is always a connected component. इसको याद रखिएगा. And this we shall employ tomorrow or next time to show this thing. ये चीज या कोई और तरीका इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, स्क्रीन शेयर. हेलो. यस सर. हेलो. अच्छा हम कल या परसों में क्लास लेना चाहते हैं. कितने बजे? 1 बजे कितने टाइम? हेलो. कल या परसों में आप टाइम बताइए. सर सैटरडे को तो 2 वेबिनार लगे हुए हैं सर हम लोगों के सर. अच्छा कल बताइए. कल का अच्छा कल और कल सर लैब नहीं होती है तो सर एक है सर एक स्लॉट खाली रहती है. हाँ कितने बजे बताइए, टाइम बता दीजिए. सर इसी आप अपने रेगुलर वाले टाइम से ले लीजिए बिकॉज़ सर लैब. अच्छा ठीक. ओके सर कल ले लेंगे फिर. है, थैंक यू वेरी मच. क्योंकि आपने बताना होगा हमारा कोर्स बहुत बाकी है. ठीक है, तो टुमारो 11 to 12. थैंक यू वेरी मच. यू कैन लीव नाउ. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम.